Good morning, students. How are you? I hope all of you are well. Last day we had learned about the complex numbers. Today we have to discuss about the absolute value and conjugate of a complex number. The absolute value of a complex number. For this, first of all, we have to suppose z is equal to a plus iota b. That is a complex number and its absolute value is denoted by mod of z. That means these two vertical lines, that is the modulus, and modulus of z is equal to square root of a square plus b square. A is the real part and b is the imaginary part. And now see the examples. Find the absolute value of the following complex numbers. That means the modulus of 3 plus 4i. Modulus of 3 plus 4i, 3 that is the real part, 4 is the imaginary part, that is equal to square root of 3 square plus 4 square. That means 25 its root, that is equal to 5. And second one is modulus of minus 2i. Minus 2i we can write 0 plus minus of 2i. Here real part is 0, imaginary part is minus 2, and therefore its modulus is square root of 0 square plus minus 2 square, that is equal to 2 only. And now the modulus of minus 1 plus 5i, that means minus 1 square plus 5 square its root, that is equal to root 26, and that is approximately equal to 5.10. And now we have to discuss about the properties of absolute value of a complex number. The first one is, if z is a complex number and its modulus is 0, then z is equal to 0. Modulus of z, that means you know square root of a square plus b square, and this square root of a square plus b square, that means this term a square plus b square is equal to 0. Sum of two square of two numbers is equal to 0 when both are equal to 0. That means a is equal to 0 and b is equal to 0, and that's why z is equal to 0. And second one is, if z is a complex number, then modulus of z and modulus of negative of a complex number is equal to modulus of z bar. Z bar is the conjugate of a complex number. This conjugate of a complex number we have to discuss later. And now the next one is, if z1 and z2 are two complex number, then the modulus of z1 into z2 is equal to modulus of z1 into modulus of z2. Means अगर हम दोनों की प्रोडक्ट लेके मॉडुलस लें या अलग अलग मॉडुलस लेके मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों हमारे पास इक्वल होते हैं. The next one is, if z1 and z2 are two complex numbers, then z1 by z2, that means the division of two complex numbers, modulus of division of two complex number is equal to division of the modulus of their complex numbers. That means mod of z1 divided by mod of z2. यानी कि ये दोनों जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए तो इक्वल रहते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए चेंज हो जाते हैं. एडिशन के लिए हमारे पास क्या हो जाता है कि mod of z1 plus z2 is less than equal to mod of z1 plus mod of z2. ठीक है, एडिशन के लिए ये हमारे पास इक्वल नहीं होते. सेम इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हो जाता है कि mod of z1 minus mod of z2 is less than equal to mod of z1 minus mod of z2. अब आप कोई भी एक एग्जांपल लेके इसको आप वेरीफाई कर सकते हो. ओके, एंड नाउ वी हैव द नेक्स्ट एग्जांपल. फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. अब इस एग्जांपल के अंदर क्या है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है. दैट इज 3 plus 4i into 4 plus 5i divided by 4 plus 3i into 6 plus 7i. So first of all we have to suppose this z is equal to this term 3 plus 4i
इंटू 4 प्लस 5i डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3i इंटू 6 प्लस 7i। अब हमने इसका मॉडुलस लेना है, तो यानी कि दोनों का मॉडुलस हो गया हमारे पास। ठीक है, अब मॉडुलस की प्रॉपर्टी थी ना कि मोड ऑफ z1 बाई z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 प्लस डिवाइडेड बाई मोड ऑफ z2। तो हमने दोनों को न्यूमरेटर का मॉडुलस सेलेक्ट किया, डिनोमिनेटर का मॉडुलस सेलेक्ट किया। और मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टी थी कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर है उनका मॉडुलस उनके मॉडुलस की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। एंड देयरफॉर mod of 3 plus 4i into mod of 4 plus 5i divided by mod of 4 plus 3i into mod of 6 plus 7i. So, and therefore it is equal to square root of 3 square plus 4 square into square root of 4 square plus 5 square divided by square root of 4 square plus 3 square into square root of 6 square plus 7 square। यानी कि ये जो हमारे पास है 3 square plus 4 square रूट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड वी गेट ओनली स्क्वायर रूट ऑफ 41 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 85। I hope you understand this. And now see the next example. If z1 is 2 minus I and z2 is 1 plus I, then find the modulus of z1 plus z2 plus 1 divided by z1 minus z2 plus 1। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले z1 और z2 की वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो z1 प्लस z2 प्लस 1 और z1 माइनस z2 प्लस 1 ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। और यहाँ पर क्योंकि बाहर इसके नेगेटिव साइन था इसलिए ये जो 1 प्लस आई है इसको ब्रैकेट में राइट किया है। ओके, और इसको सिंप्लीफाई किया, आई से आई कैंसिल हो गया न्यूमरेटर में, वी गेट 4 ओनली। और डिनोमिनेटर में ये नेगेटिव साइन बाहर है तो ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, वी गेट 2 माइनस 2i और 2 कॉमन लेके कैंसिल, इट बिकम्स 2 अपॉन 1 माइनस आई। यानी कि अगर हम चाहें, क्योंकि 2 अपॉन 1 माइनस आई है तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड यानी कि इसको जो डिनोमिनेटर है इसको हमने रियल बनाना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको रेशनलाइज किया, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस आई से डिवाइड किया। तो अब ये 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। यस, कौन सा फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया 2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, वी गेट 1 प्लस आई। ठीक है, और अब हम इसका क्या लेंगे, यस अब इसका मॉडुलस ले लेते हैं, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2 प्लस 1 यानी कि मोड ऑफ z1 प्लस आई दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर भी इसका मॉडुलस ले सकते हैं, किस रूल के अकॉर्डिंगली, मोड ऑफ z1 बाय z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ z2, तब भी हमारे पास ये सेम रिजल्ट आएगा जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया था। And now we have the conjugate of a complex number. If z is equal to a plus iota b, that is one complex number, then its conjugate is denoted by z bar. Z bar is obtained by simply converting the sign of imaginary part. यानी कि जो इसका इमेजनरी पार्ट है, इमेजनरी पार्ट क्या है, आयोटा बी के साथ क्या है, प्लस साइन, इसका साइन चेंज करने से हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, कंजुगेट। सिर्फ इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, अगर हम दोनों का ही साइन चेंज कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, यस हमने लास्ट डे किया था, वो हमारे पास बन जाएगा एडिटिव इनवर्स। ओके, ए एंड बी आर रियल नंबर्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस ऑफ z, both will be the same. Now second one is the conjugate of a conjugate that is equal to z itself. यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम 2 बार कंजुगेट ले लेंगे तो वो नंबर आ जाएगा। जैसे z का कंजुगेट क्या है, z a प्लस आयोटा बी है, इसका कंजुगेट क्या है, a माइनस आयोटा बी, और जब हम इसका दोबारा से कंजुगेट लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये a प्लस आयोटा बी, यानी कि दोनों रिजल्ट हमारे पास क्या हो गए, सेम हो गए। ओके, नेक्स्ट वन इज, यानी कि अगर हम z को z बार में ऐड कर दें, z हमारे पास क्या है, a प्लस आयोटा बी, z बार a माइनस आयोटा बी, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा,
2a, where a is the real part of z. It becomes 2 into real part of z. और z minus z bar किसके इक्वल हो जाएगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज 2bi. और b क्या है? इमेजनरी पार्ट, 2i इंटू इमेजनरी पार्ट. और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अगर हम z को z बार से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा? z इंटू z बार, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर. ठीक है, a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, देन इट बिकम्स यस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, और स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव. और ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मोड ऑफ जेड का स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो जेड इंटू जेड बार है वो हमारे पास किसके इक्वल है? मोड ऑफ जेड स्क्वायर के इक्वल. ओके, and now see the next one, properties of a complex number, conjugate of a complex number. next property है कि अगर हम z का स्क्वायर कर दें, z हमारे पास क्या है? a प्लस आयोटा b. ठीक है, इसका स्क्वायर कर दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2bi माइनस b स्क्वायर. सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन किया है और आई स्क्वायर को -1 के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया है. और ये क्या है? जेड बार स्क्वायर. जेड बार स्क्वायर में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 2abi माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास ये भी. एंड नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इफ z1 and z2 are two complex number, then conjugate of z1 plus z2, that is equal to conjugate of z1 plus conjugate of z2. And next one is the conjugate of z1 minus z2 is equal to z1 bar minus z2 bar. And conjugate of a product of two complex number is equal to multiplication of the conjugate of their two complex number. Yeah, that means z1 bar into z2 bar. और सेम इसी तरह से डिवीजन के लिए है. कंजुगेट ऑफ z1 बाय z2 इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z1 इनटू कंजुगेट ऑफ z2. इज इट क्लियर? एंड नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि z इंटू जेड बार किसके इक्वल है? मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर के इक्वल. और z बाय z1 बार ये हमारे पास बनेगा a स्क्वायर प्लस 2abi माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने डिस्कस की हैं. अब हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं. फाइंड द कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 12y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 12y. सबसे पहले तो ये देखिए, ये हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ इरेशनल नंबर्स भी है. तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो उसको हमने जेड सपोज किया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. ठीक है, साथ में ये इरेशनल नंबर्स भी है, तो इसको हम क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे. रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते थे? जो डिनोमिनेटर में जो साइन होता है उसका अपोजिट साइन. यहाँ पर नेगेटिव साइन था तो हमने इसका पॉजिटिव साइन लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है. ओके, ऊपर तो हमारे पास ये बन गई a प्लस बी होल स्क्वायर. ठीक है, तो उसकी आइडेंटिटी को ली है 5 प्लस 12y 5 माइनस 12y प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12y इंटू 5 माइनस 12y. ओके, साथ साथ कर रहे हो ना आप लोग? यस, बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए साथ साथ, अदरवाइज हम स्टेप्स मिस कर जाते हैं और फिर भूल जाते हैं. ठीक है, क्योंकि फिर हमें उसके बाद फिर हमें दोबारा से देखनी पड़ती है वीडियोस, तो इसलिए बेटर यही है कि आप इसके कैलकुलेशन को साथ साथ करते जाइए. तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 5 प्लस 12y. नीचे हमारे पास आइडेंटिटी यूज हो गई ना, कौन से वाली? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो स्क्वायर करने से इसके रूट कैंसिल हो गए. वी गेट 5 प्लस 12y माइनस ऑफ 5 माइनस 12y.
और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये रिजल्ट बन गया 10 plus 2 into square root of 25 minus 144 I square, and then it is equal to, yes, ओके तो अब हमारे पास क्या बन गया ये 10 plus 2 square root of 25 plus 144। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये प्लस का बन गया डिवाइडेड बाई 24i। ठीक है, तो और इसको सिंप्लीफाई किया 25 प्लस 144 169, और 169 का रूट क्या होता है 13 इंटू 2 26 प्लस 10 36 डिवाइडेड बाई 24i, और इसको हमने क्या किया 12 से कैंसिल किया 3i डिवाइडेड बाई 2i स्क्वायर। आई स्क्वायर हमारे पास क्यों आ गया, यहाँ पर तो i था, हमने क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर i नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए, इसलिए हमने i से मल्टीप्लाई डिवाइड किया and you will get -3 by 2i। okay, I hope you understand this, and now see the next example। हमने क्या करना था, इसका कंजुगेट फाइंड करना था, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया था -3 by 2i, तो इसका कंजुगेट क्या बन गया 3 plus 2i। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में है इफ a plus iota b divided by c plus iota d is equal to x plus iota y, then prove that x square plus y square is equal to a square plus b square divided by c square plus d square। ये क्वेश्चन हमने असाइनमेंट में भी किया था, जो हमने वर्कशीट दी थी ना होमवर्क वाली, उसमें भी था, लेकिन उसके अंदर हमने क्या किया था कि इसको रेशनलाइज किया था पहले, और रेशनलाइज करके कंपेयर किया था। ठीक है, कंपेयर करने के बाद x और y की जो वैल्यूज आई थी वो इसके लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट की थी, तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड आया था। तो अब हम इसको जो है प्रॉपर्टीज की हेल्प से कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज की हेल्प से करने के लिए यानी कि हम इसके कंजुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू का यूज करेंगे। तो पहले हम कंजुगेट का यूज करें कि x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाई सी प्लस आयोटा डी। हम क्या ले लेते हैं, इसका कंजुगेट ले लेते हैं। तो कंजुगेट ऑफ x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा डी। तो कंजुगेट की प्रॉपर्टी है कंजुगेट ऑफ z1 बाय z2 इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय कंजुगेट ऑफ z2। तो a प्लस आयोटा बी का कंजुगेट क्या होगा a माइनस आयोटा बी, और c प्लस आयोटा डी का कंजुगेट c माइनस आयोटा डी। ठीक है, और ये पर क्या है x माइनस आयोटा वाई। एक तो हमारे पास ये टर्म है x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी, ये नंबर 1 ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, दिस इज योर नंबर 1 इक्वेशन। ठीक है, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 नहीं है, ये और ये हमारे पास क्या है नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने लेना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग करने से हमारे पास क्या बनेगा x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय सी माइनस आयोटा डी। ओके, तो यहाँ पर क्या बन गया, आइडेंटिटी यूज होगी, कौन से वाली, यस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर बन गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और सेम इसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में देखिए कि राइट हैंड साइड में a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, देन इट बिकम्स ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। इसमें भी सेम यही प्रॉपर्टी यूज हुई है, आइडेंटिटी यूज हुई है, कौन से वाली, a प्लस बी इंटू ए माइनस आयोटा डी। और आई स्क्वायर की वैल्यू अगर हम -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, वी गेट दैट रिजल्ट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। दोनों मेथड से हम कर सकते हैं, पहले हम रेशनलाइज करके कंपेयर करके, और दूसरा हम कंजुगेट लेके भी इसको कर सकते हैं। जो आपको बेटर लगे उससे आप क्वेश्चंस कीजिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।